children, my name is Rashmi Singh. I am your GK teacher of class 4. So children, you are all welcome in today's class. I hope you are all well and safe at your home. So children, today's our topic is languages of the world from chapter number 9, and our book name is Together with General Awareness. So children, today we will read only page number 20. Before reading this chapter children, I will tell you that our country is very large country in the world, and many countries are situated in the world like China, Nepal, Japan. So children, there are different type of languages spoken in the different part of our country. हमारे देश के अलग अलग भागों में, इंडिया में ही नहीं बल्कि संसार में हर देश की अलग अलग भाषा होती है. तो हर जो भाषा होती है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज होती है. In this chapter today children, we will know these type of famous languages of famous places. उन जगहों की हम लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, and along with we will know how to write these language, और उस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है. In this chapter we will learn. Before reading this chapter, I want to show your course book. So children, this is your course book, Together with General Awareness for class 4. And children, this is your chapter. Chapter number 9, Languages of the World. So children, languages help us communicate with each other. Language वो वे होता है जिसके माध्यम से we can communicate with each other, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. It is made up of the words we speak or write down. जो वर्ड्स हम बोलते हैं और लिखते हैं उनको बनाता है कम्युनिकेशन का वे, लैंग्वेज बनाती है उन्हें. There are several different languages spoken in the world. इस संसार में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. So children, today we will know some languages. कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So children, I will write here the languages on the blackboard. So please take out your notebook and try to write them in your notebook and learn them. These all are very important for your exam. So first language is Arabic language. I write here Arabic. First of all, I write here languages. And I write here Arabic. What is the speciality of Arabic language? तो यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे. Is the language of अरब. ये कहाँ की लैंग्वेज है बच्चों? अरब की लैंग्वेज है. इसे हम अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं. अरब नेशंस होते हैं उनमें बोली जाती है ये. इन द, और ये अरब नेशंस कहाँ पे हैं? मिडिल ईस्ट में है. मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका. Arabic is the language which is spoken in the Arab nations. These nations are situated in the Middle East and Northern Africa. अरेबिक लैंग्वेज जो है अरब नेशंस की भाषा होती है, और अरब वाले जो देश होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है? मिडिल ईस्ट में. जो ईस्ट हमारी डायरेक्शन है उसके मिडिल में, मध्य में, और अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर ये देश स्थित है. द अरेबिक
The Arabic alphabets has 28 letters. इसके जो लेटर्स होते हैं, इस लैंग्वेज के कितने लेटर्स होते हैं? 28 लेटर्स होते हैं. एंड इज रिटन, और ये कैसे लिखी जाती है? इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. So children, most common languages are mostly written left to right, but Arabic language is written in the form of right to left. सामान्यतः जो भाषाएं होती है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेकिन जो अरेबिक लैंग्वेज होती हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं. और अरेबिक जो लैंग्वेज होते हैं उसमें अल्फाबेट्स होते हैं 28 लेटर्स होते हैं. जनरल देखा जाए तो हमारे जो इंग्लिश होती है लैंग्वेज उसमें लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. पर अरेबिक में अल्फाबेट्स की जो नंबर होती है वो 28 होती है. और ये लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती है. और ये कहाँ पर बोली जाती है? दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज स्पोकन इन अरब नेशंस. वेयर द अरब नेशंस आर सिचुएटेड? Arab nations are situated in Middle East and Northern Africa. Now, second, I will write here second language. Chinese. From the name, you can understand that this language is spoken in the China. चाइना में बोली वाली लैंग्वेज को हम चाइनीज लैंग्वेज कहते हैं. इसके नाम से ही आप समझ सकते हो. सो चाइनीज डज नॉट हैव एन अल्फाबेट. इस लैंग्वेज के कोई अल्फाबेट्स नहीं होते हैं. अल्फाबेट मीन्स लेटर्स, है ना, वो नहीं होते हैं इस लैंग्वेज में. अल्फाबेट्स ऑफ लेटर्स. फिर ये कैसे लिखी जाती है बच्चों? आइए समझते हैं. इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर सिंबल्स. अब देखिए, चाइनीज लैंग्वेज इज स्पोकन इन द चाइना, बट इट डजंट हैव एन अल्फाबेट. इसमें जो लेटर्स के अल्फाबेट होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं. इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर सिंबल्स. इसमें चित्रों, बहुत सारे चित्र होते हैं, उनके सिंबल्स बने हुए होते हैं. उन सिंबल्स के द्वारा इस लैंग्वेज को समझा जाता है. इसमें अल्फाबेट्स का यूज बिल्कुल नहीं होता है. सो वी विल नो 2 more language. So I have to erase them from the blackboard and then I will write here. Third is Japanese. जापानीज लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे. किस टाइप की होती है? इट इज स्पोकन इन जापान. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस नेम. लर्न टू राइट विद अ ब्रश. इस लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है? लिखना. ब्रश और इंक की सहायता से इसे लिखा जाता है. विद अ brush and ink. This beautiful way of writing is called
calligraphy is called calligraphy. Japanese language is spoken in Japan mostly, but how it write, कैसे लिखी जाती है? Learn to write with a brush and ink. इसे ब्रश और इंक की सहायता से लिखा जाता है. This is beautiful way of writing. ये बहुत ही सुंदर तरीका होता है भाषा को लिखने का. तो ये जो सुंदर तरीका होता है वो कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है. It is known as the name of calligraphy. Next, last language is Russian. Russian language. अब ये लैंग्वेज कैसी होती है? It is spoken in Russia, but it has its own alphabet. इसके अपने ही अल्फाबेट्स होते हैं. Alphabet. It has 33 letters. इसमें कितने लेटर्स होते हैं बच्चों? 33 लेटर्स होते हैं. कमिंग ओरिजिनली, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से ली गई है ये लैंग्वेज? इसमें ये बताया गया फ्रॉम ग्रीक अल्फाबेट. जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसके अल्फाबेट से ये अल्फाबेट्स लिए गए हैं इस लैंग्वेज के. इसकी उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है. ग्रीक लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं वहाँ से इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स लिए गए. इसके अपने अल्फाबेट्स होते हैं. कौन सी लैंग्वेज के बच्चों? रशियन के. एंड नाउ चिल्ड्रन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. हाउ टू से हेलो इन इंग्लिश. इंग्लिश में हम किसी से मिलते हैं. व्हेन वी मीट सम पर्सन, हाउ वी ग्रीट हिम और हर. जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसे कैसे अभिवादन करते हैं? बाय सेइंग हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, लाइक दिस. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट वी से इन इंग्लिश व्हेन वी मीट सम पर्सन. इंग्लिश में हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? चाइनीज लैंग्वेज में हेलो को क्या बोलते हैं? इसी प्रकार से स्पेनिश में हेलो किसी को बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं. तो क्या कहते हैं? उन चीज़ों को आज वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. हम यहाँ पर समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दीज टू लैंग्वेज फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. देन आई विल राइट हियर. व्हेन वी मीट somebody, है ना, then in English language how we greet him or her. तब हम उससे कैसे मिलते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फर्स्ट ग्रीट करते हैं, तो हम बोलते हैं हेलो. क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो. नेक्स्ट, इसी तरीके से जब हम उर्दू में हमको हेलो बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे बच्चों? सलाम. क्या बोलेंगे? सलाम. थर्ड, चाइनीज में कैसे बोलेंगे बच्चों? हम हेलो को क्या बोलेंगे चाइनीज लैंग्वेज में? वो यहाँ मैं लिखती हूँ नी हाओ. कैसे बोलेंगे? नी हाओ. हेलो बोलने को हम नी हाओ बोलेंगे. इसी प्रकार से स्पेनिश में हम क्या बोलेंगे? स्पेनिश लैंग्वेज में हम हेलो को बोलेंगे होला. फिफ्थ है, हिंदी में जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सिंपल वे में बोलते हैं नमस्ते. क्या बोलते हैं बच्चों? नमस्ते. सिक्स्थ है, पॉलिश लैंग्वेज होती है बच्चों, उसमें जब कोई किसी से मिलता है तो क्या बोलते हैं? चेक.